Dear students, again welcome to online classes from Divas International Public School. Myself Anjali Panchal. Today I am here to teach you lesson number 4, The Ashes That Made Trees Grow. This one is the Japanese story by William Elliot Griffiths. Here are some new words, so please read these new words with me. Dam, hoe, spade, scratching, smothered, sensitive, spirit, pound, miserable, stingy, pomp, dignity, pretended, and prostrate. Students, this one is the Japanese story of an old couple, honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and a dog dies a sad death. But the spirit of the dog helped his master in an unexpected way. So, students, so let's read the whole chapter and I will explain you. Meanwhile, in the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. The meaning of daimyos in 19th century, wealthy landowners are called daimyos. तो daimyos के olden days में there lived a one couple, old couple is there and they have a little pet dog. उनका एक pet dog था. Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके कोई बच्चे नहीं थे. Having no children, they don't have any children, so they love that dog as their own baby. The old dame made it cushion of blue crab, and at meantime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The old dame, जो old couple थे, उन्होंने एक कुशन बनाया था जिसपे ब्लू क्रैप किया था. ब्लू कलर के कुशन पे वो खाने के टाइम पे. मुको इज द नेम ऑफ दैट डॉग. दैट पेट डॉग इज कॉल्ड मुको. मुको उसका पेट नेम था. तो मुको मील टाइम यानी कि खाने के टाइम पे वो उस कुशन पर बैठ के खाना खाता था. द काइंड पीपल फेड दैट पैट विथ tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. जो ओल्ड कपल थे वो क्या करते थे, अपने खुद की जो चॉपस्टिक्स थी, जापानीज़ और चाइनीज़ ज़्यादातर आपको पता ही है कि चॉपस्टिक्स से खाते हैं. वो चॉपस्टिक्स उनकी खुद के चॉपस्टिक्स से वो फिश वगैरह उन खाने के लिए डॉग को दिया करते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. उसे जितने राइस खाने थे वो उसे ओल्ड मैन उन्हें खाने के लिए दिया करते थे. Thus treated, the dumb creature loved its protector like being with a soul. उस पैट डॉग को ऐसे ट्रीट करते थे वो ओल्ड कपल. दैट्स वाई द डॉग ऑल्सो लाइक एंड लव दैट ओल्ड कपल ऑल्सो. जैसे डॉग उनको लव करता था और वो डॉग को लव करते थे. The old man, being a rice farmer, went daily with hope and spade into the fields, working hard from morning until Otento-sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. The old man, जो old man थे वो एक rice farmer थे. क्या थे? Rice farmer. So वो daily अपना hoe and spade. This hoe and spade is the tools for farming. ये farming के tools है hoe and spade. वो लेके वो खेत में जाया करते थे. वो बहुत मेहनत करते थे. He works very hard from morning until Otento-sama. Otento-sama, here the Otento-sama is the sun in Japanese language. Otento-sama had gone down behind the hills. मतलब जब सन हिल्स के पीछे यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत मेहनत करते थे खेत में. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. तो जो हर एक रोज़ जब वो फार्मर जाते थे तब वो डॉग उनके पीछे पीछे हर रोज़ जाता था. और डॉग हर रोज़ उनके पीछे जाता था. और जब वो ओल्ड मैन चलते थे तब वो कोई वार्म वाइट हेरन बर्ड्स जो थे वो पिक करते थे वॉर्म्स. तो उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाता था ओल्ड मैन को. डॉग for the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds.
For the old fellow was patient and kind. Here the old man was very patient as well as kind. वो बहुत दयालु थे और बहुत पेशेंट वाले इंसान थे. उनकी लाइफ में वो बहुत अच्छे थे और वो क्या करते थे, वो कभी भी दूसरों को हार्म पहुंचाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, एज वेल एज वो बर्ड्स को भी खाना देते थे. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन वो डॉग आता है दौड़ के, रनिंग टू हिम, केम रनिंग टू हिम मतलब वो दौड़ के फार्मर के पास आता है. वो अपने पंजे जो हिज पॉज मतलब उसके पाँव के जो पंजे होते हैं वो उसके पैर के आगे रखता है और मोशनिंग विथ हिज हेड, और अपने सिर को हिलाता है. एंड सम स्पॉट बिहाइंड मतलब वो उसको फार्मर को कहना चाहता है कि मुझे फॉलो करो. वो कोई स्पॉट पे यानी कि कोई जगह पे, कोई प्लेस पे फार्मर को ले जाना चाहता था, इसीलिए वो ये सब कर रहा था. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. तो फार्मर क्या सोच रहे थे कि उनका जो पैट है, डॉग है, वो उसके साथ खेल रहा है, इसीलिए उसको माइंड नहीं किया, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. जो कुत्ते करते हैं आपको पता है वो कैसे खेलते हैं, तब कैसे एकदम से दौड़ा दौड़ी करते हैं, हाँफते हैं. जो कुत्ते करते हैं आपको पता है, वो उसकी आवाज़ें निकालते हैं ऐसे और दौड़ते हैं, हाँफते हैं, वो सब करते हैं ना, वैसे वो करने लगा थोड़ी टाइम. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग a few yards to a place where the animal began to lively scratching. तो थोड़े आगे जाके वो फार्मर ने डॉग के पीछे गए और थोड़े आगे जाके एक प्लेस आया, वहाँ पे वो क्या करने लगा, स्क्रैचिंग करने लगा, अपने पाँव से खुदाई करने लगा, स्क्रैच करने लगा. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बॉन और बिट ऑफ फिश. तो वो ओल्ड मैन ने सोचा यहाँ पे उसके खाने के लिए कोई चीज़, फिश या कोई बॉन वगैरह हड्डी वड्डी होगा, तो वो ऐसे स्क्रैचिंग कर रहा है. स्ट्रक हिज हॉ इन द अर्थ. जब वो जो वो फार्मर थे, जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे हो से खुदाई की. मतलब व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. ये जो एक्सक्लेमेशन दिया है कि वो उन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज में अपना एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे. एकदम से उनको चौकित हो गए वो एकदम से, और वहाँ पे क्या निकला, गोल्ड के सिक्के. गोल्ड एकदम से, ग्लीम्ड मतलब चमकना, यहाँ पे ग्लिटर करना, एकदम से गोल्ड के कॉइन्स चमकने लगे. तो दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वेर मेड रीच. ऐसे ही एक घंटे में, विदिन 1 hour द ओल्ड कपल वेर मेड रीच. ऐसे ही 1 घंटे में, 1 आवर में वो लोग एकदम रीच हो गए. द गुड साउल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स. तो ये ओल्ड कपल था, वो कैसा था, एकदम काइंड एंड पेशेंट. तो वो अच्छे इंसान थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले थोड़े से एक पीस ऑफ लैंड ले लिया, ज़मीन ले ली. मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स. फीस्ट मतलब दावत देना, अपने फ्रेंड्स को दावत दी, अच्छा सा खाना खिलाया. एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर. और उनके जो गरीब पड़ोसी थे, उनको भी उन्होंने क्या दिया, अपने पड़ोस में रहने वाले गरीबों को भी उन्होंने थोड़े से कॉइन्स दिए. एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विथ काइंडनेस. मतलब डॉग के लिए उन्होंने क्या, उसको बहुत सारा प्यार किया. पैट मतलब उसकी पीठ पे ऐसे जो कुत्ते को सब करते हैं ना लव, वैसे वो अपने काइंडनेस इतनी अच्छी दिखाई उस डॉग के लिए कि वो बहुत खुश थे उससे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी काइंडनेस उस पर दिखाई. क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट डॉग दे विल बिकम रिच. ओके, नाउ in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind. आपको पता है जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी ऑलवेज होते ही है. सो इन दिस सेम विलेज, यही विलेज में, वहाँ पे वन विकेड कपल इज ऑल्सो देयर. वन विकेड मैन एंड हिज वाइफ इज देयर. they were very cruel as well as they are not sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अगर उनके घर से कोई कुत्ता अगर निकलता भी था तो वो उसको मारते थे और भगाते रहते थे. Hearing of their neighbors good luck,
हियरिंग देयर नेबर्स गुड लक, मतलब ये ओल्ड अच्छे जो कपल थे, ओल्ड गुड कपल इज़ देयर, उनकी अच्छाई, उनको जो ये सब गोल्ड मिला और उनके गुड लक के बारे में जब ये विकेट कपल को पता चला तो उन्होंने क्या किया, दे कॉक्स्ड द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डाइनिंग्स होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। तो जैसे ही उनको उस पता चला कि इस डॉग ने उनको अच्छे से गोल्ड कॉइन्स दिलाए हैं, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने उस डॉग को अपने गार्डन में बिठाया और बहुत सारे बिट्स ऑफ फिश दिए और अच्छे सा खाना दिया, टेस्टी फूड, डेंटीज मतलब अच्छी फूड, टेस्टी फूड दिया ताकि वो भी उनको खजाना ढूंढ के दे, इसी होप में कि होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम ऑल्सो। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पैर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। बट उनको पता था, ये डॉग को पता था कि ये बहुत क्रूअल पीपल है, उसकी उनकी क्रूअल्टी के हिसाब से वो डॉग ने ना तो खाया ना वो वहाँ से हिला, क्योंकि उसे डर लग रहा था। द डॉग वॉज अफ्रेड ऑफ देम। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. फिर क्या हुआ, उन्होंने उस डॉग को धक्का मार के बाहर निकाला डोर के और उन्होंने स्पैड एंड हो अपने साथ ले लिए। फिर जल्दी ही डॉग थोड़ा आगे गया पाइन ट्री के नीचे और वहाँ पे उसने गार्डन में स्क्रैचिंग शुरू कर दी ग्राउंड पर, मतलब जैसे कि वहाँ पे उसके नीचे कोई बड़ा सा खजाना छुपा हुआ, ग्रेट ट्रेजर, माइटी ट्रेजर ब्ले बिनेथ। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूड एज ही डांस्ड विद जॉय। फिर क्या हुआ, वो खुशी के मारे, ऐसे लालची इंसान है, खुशी के मारे पागल हो गया, डांस करने लगा और उसकी वाइफ को बोलने लगा कि मुझे जल्दी से स्पैड एंड हो दो, हम फटाफट से इसको गोद के खजाना निकाल लेते हैं, लाइक दैट। देन द कोवेटस ओल्ड फिलो विथ अ स्पैड, यानी कि जो ग्रीडी इंसान, जो ओल्ड फार्मर था, ग्रीडी लालची इंसान, वो फार्मर ने स्पैड लिया एंड ओल्ड क्रॉन, उसकी जो क्रॉन मतलब ओल्ड वुमेन जो उसकी वाइफ थी, उसने होली एंड दे बिगेन टू स्टार्ट, यानी कि उन्होंने क्या किया, दे बिगेन टू डिग, खुदाई शुरू कर दी। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। जो वहाँ पे खजाना तो नहीं था पर बल्कि एक मरा हुआ किटन था, एक कैट थी जिसकी वजह से बहुत बदबू आ रही थी, जो बदबू की वजह से उनके हाथ में से जो उनके टूल्स थे वो भी गिर गए और उनकी नाक भी सिकुड़ गई, मतलब उनकी नाक में बड़ी सारी बदबू चली गई वो किटन की। सो फ्यूरियस एट द डॉग, फिर उससे क्या हुआ, उनका जो गुस्सा पूरा था वो डॉग पर गया, क्योंकि उसने खजाना नहीं बल्कि एक मरा हुआ किटन निकाल के दिया, मतलब वहाँ पे वो स्क्रैचेस किया तो वहाँ से खजाना नहीं निकला बट कि एक मरा हुआ किटन निकला। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। फिर क्या हुआ कि उसकी वजह से वो गुस्से के मारे वो जो ओल्ड फार्मर था उसने उस कुत्ते को मार मार के मतलब उसने डेथ हो गई उसकी, उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, मतलब उसकी वाइफ ने क्या किया, यहाँ पे उसका जो सिर काट दिया, मतलब एक शार्प हो से उसको मर तो चुका ही था फिर भी उसका सिर काट दिया। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। यहाँ पे carcass का मीनिंग होता है डेड बॉडी और flung का मीनिंग थ्रू। उन्होंने क्या किया, उसकी जो डेड बॉडी थी वो खुदाई वाले होल में डाल दी और उस पर मिट्टी डाल दी, पूरा कवर कर दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet, मतलब ये जो ऑनर यानी कि जो ऑनेस्ट ओल्ड कपल थे, जो अच्छे वाले फार्मर, उनको पता चला कि उनके डॉग की, उनके पैट की डेथ हो गई है। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, उनको इतना बुरा लगा उसकी डेथ का कि जैसे उनका कोई अपना बच्चा खो दिया है उन्होंने, उतना उनको बुरा लगा। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, उसी रात वो उस पाइन ट्री के नीचे गए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफॉर टॉम्स, टॉम्स के लिए जो यूज़ होते हैं ना बैम्बू
ट्यूब्स जैसे यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, ये बैम्बू ट्यूब्स ऐसे कैसे खड़ा की है, जहाँ पे उसका डेड बॉडी गाड़ा है ना उन्होंने, वहाँ पे ऐसे बैम्बू ट्यूब्स खड़े कर दिए है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिस पे उन्होंने क्या रखा, फ्रेश फ्लावर्स रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्री ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। फिर वहाँ पे उन्होंने फ्रेश फ्लावर रखे, अच्छा सा खाना लाए, पानी लाए, और फिर जो कॉस्टली स्टिक्स होती है ना इंसेंस, वहाँ पे उसको उसके मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या एक कॉस्टली स्टिक्स जला के उसको शांति के लिए यहाँ पे उन्होंने ये सब किया। और ही मॉर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वेर अलाइव। जैसे वो जिंदा हो, उसे प्यार से बुलाते हो अलग अलग नाम से, वैसे उनके बहुत डियर नेम्स यानी कि बहुत सारे जो उसे जिंदा और बुलाते हैं ना अच्छे अच्छे नामों से, पेट नेम से, वैसे उन्हें वो डॉग को वो ओल्ड फार्मर्स बुलाने लगे। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. उसी रात को जब फार्मर सो गए थे, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, दैट नाइट व्हेन द फार्मर वॉज स्लीपिंग द स्पिरिट ऑफ दैट डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड सेड, यहाँ पे उसके ड्रीम में आकर कुत्ता बोलता है, डॉग बोलता है, कट डाउन दैट पाइन ट्री, उस वो जो पाइन ट्री है उसे काट दीजिए, एंड मेक फ्रॉम इट, और उसमें से क्या बनाइए, मोर्टार। हियर द मीनिंग ऑफ मोर्टार इज बाउल। मेक वन बाउल फ्रॉम दैट पाइन ट्री फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर सॉस फॉर योर बीन सॉस। यहाँ पे ये फार्मर के ड्रीम में आके डॉग कहता है कि यहाँ से आप जो उसमें से अपने राइस के लिए बाउल बना लीजिए। And see students, now we'll end this now here we'll end, and in the next lecture we'll continue the rest of the lesson. Okay students, goodbye and thank you. Have a nice day.